So here we are discussing the chapter locomotion and movement, and in this chapter locomotion and movement we need to discuss about the structure of contractile proteins before we go into the mechanism of muscle contraction. So today in this video we are going to talk about two important topics. One is structure of contractile proteins, what contractile proteins are present inside the muscle, followed by mechanism of muscle contraction. Okay, so these are our two topics in this video. Okay, so structure of contractile proteins, in the tissue chapter you have studied about contractile proteins, where I gave you a diagram of a sarcomere, and in the sarcomere we call this as sarcolemma. अंदर का cytoplasm is sarcoplasm, Z line, actin, okay, and बीच वाला myosin. But actin and myosin, whenever we say about contractile proteins, the most common term that comes out is actin and myosin. But actually, when we see them in a detailed manner, so we see that they are not called as actin and myosin. They are called with some different names. What are those different names? For example, you need to discuss about two main muscle filament. Myofilament माने muscle का filament. Two main muscle filament. One is called as thick myofilament. Another one will be called as thin myofilament. So who is thick myofilament? Thick myofilament is none other than your myosin. In this diagram of sarcomere, we know this one is myosin. So we know that myosin is a polymer. It's a bigger protein, and a polymer is made up of monomers, smaller units. When smaller units gets joined with one another, it forms a polymer. So ये monomer कौन है जो इस polymer myosin को बनाता है? These monomers are none other than meromyosin. So how does your myosin looks like? Your myosin, which is represented in a sarcomere by this single red line in the middle, this myosin को अगर हम लोग zoom करें तो ये myosin हम लोग को ऐसा दिखाई देगा. This is how a myosin looks like. Okay, and these are your monomers which is making collectively a polymer, and this polymer is your myosin. Now if I take one monomer out of there and उस पे अगर हम लोग zoom करके देखें, ये जो एक monomer है उस पे अगर zoom करके देखें तो इस monomer को क्या बुला रहे हैं? meromyosin. और zoom करेंगे तो वो meromyosin हम लोग को ऐसा दिखाई देगा. The meromyosin will look something like this. So in this structure you can see I have divided this monomer meromyosin into two parts. Okay, this part is called as LMM, that is light meromyosin, and this part is called as HMM, heavy meromyosin. ये जो लाइट मेरोमायोसिन है उसका ये जो रीजन है, इस रीजन को हम लोग क्या बुलाते हैं? दिस इज कॉल्ड एज टेल रीजन. एंड टेल रीजन जो है इट हैज मेरोमायोसिन बाइंडिंग साइट. यहाँ पे मेरोमायोसिन बाइंडिंग साइट है. सो नेक्स्ट मेरोमायोसिन इधर बाइंड होगा. इस डायग्राम को देख के हम लोग को क्या लग रहा है? ये जो टेल रीजन है, ये पकड़ लो, एक मेरोमायोसिन है. दूसरा मेरोमायोसिन कहाँ बाइंड हो रहा है? इधर बाइंड हो रहा है कि नहीं? दिस इज अनदर मेरोमायोसिन व्हिच इज बाइंडिंग ओवर हियर. देन अनदर मेरोमायोसिन विल बाइंड ओवर हियर. So this is basically that region where the next meromyosin is binding. So tail has the meromyosin binding site. Okay. Now this region is bigger and it is called as heavy meromyosin or HMM. यहाँ पे दो region है, एक है head region, एक है arm region. Okay. So arm में क्या present है? ATP binding site. ये सब याद रखना पड़ेगा. ये जो आर्म रीजन है, इस आर्म रीजन में एक बाइंडिंग साइट है जिसको हम लोग क्या बुला रहे हैं? एटीपी बाइंडिंग साइट. ये सब मैकेनिज्म ऑफ मसल कंट्रैक्शन में जरूरत पड़ेगा. एंड ये जो जगह है इसको हम लोग हेड रीजन बुला रहे हैं, एंड हेड रीजन में भी एक बाइंडिंग साइट प्रेजेंट है. इट हैज एक्टिन बाइंडिंग साइट. यहाँ पे एक्टिन बाइंड करेगा. अभी एक्टिन कैसे बाइंड करेगा, क्या नहीं करेगा, वो बाद में समझ में आएगा व्हेन वी विल गो टू द मैकेनिज्म ऑफ मसल कंट्रैक्शन. फॉर नाउ यू नीड टू नोट डाउन दिस इंफॉर्मेशन एंड यू नीड टू रिमेंबर दैट द टेल हैज वन बाइंडिंग रीजन, आर्म हैज अनदर, हेड हैज अनदर. बट हेड एंड आर्म विल फॉल in the heavy meromyosin region and tail will fall in the light meromyosin region, and collectively this is your one meromyosin which is forming what? Which is forming a polymer called as myosin by joining with other meromyosin. So several meromyosin will join with one another to form a polymer called myosin. So this is how myosin polymer looks like, and this is how monomer which will make this polymer meromyosin looks like. Now we will move to number 2, that is thin myofilament, and we will see what are the entities present in the thin myofilament. Then we will collectively bring them in mechanism of muscle contraction and we will understand that mechanism. Okay, so make notes. So यहाँ देख सकते हो, अभी हम लोग सेकंड कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन के बारे में बात कर रहे हैं which is called as thin myofilament. Okay, so thin myofilament में क्या है? 3 entities are there. 3 चीज मिलके इसको बनाता है. And what are these 3 entities? Actin, tropomyosin, troponin. तो एक एक को समझना है. Okay, so first we are discussing about whom? First we are discussing about actin. Okay, so actin में क्या बोला गया है?
during muscle relaxation, okay, when the muscle is in relaxed state, when it is not contracting, the actin is called as what actin? It is called as G actin. And how does the G actin looks like? See, now actin, it is also a polymer, so it's obvious that it will be made up of some monomers, okay. So the monomers with which the actin is made up of, these are called as actinin substances, okay. So these are your actinin substances which will look something like this, okay. It will look something like this, that is scattered, it is not present very close to each other, or there it is not firm. That is called as G actin, and that is the situation of actin when the actin is in relaxed state, or when the muscle is in relaxed state. Actin will be in the form of G actin, where the monomers are loosely bind with one another, hence it gives some this kind of projection. Now when during muscle contraction, when the muscle is about to contract, the G actin becomes what actin? F actin, okay. And what is F actin? For formation of F actin, there will be requirement of a very important ion called magnesium ion, and with the help of this magnesium ion, G actin becomes F actin. That means these monomers which are loosely bind, that you can see over here, they will get very tightly bound with one another because of the magnesium ion, and due to that tightly binding, what will happen? These monomers are going to form a strong and a very firm band, okay, strong and a very firm structure which is called as F actin. And as you can see here, what is the structure of F actin? In F actin, these units are going to merge in such a way that they form a structure which is like a, क्या बोले इसको, क्या बोले, मतलब which is entangled around each other, okay, which is entangled around each other, ठीक है. ऐसे 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 करके घूम के, जैसे डीएनए का एंटेंगलिंग होता है, डीएनए का डबल स्ट्रैंडेड का जैसे एंटेंगलिंग होता है, उस तरीके से, ठीक है. इट विल गेट close enough to one another, and the structure which will form, it will be a firm structure, but these monomers will form a kind of a structure where you will see that two strands are rotating along each other, okay, and they are forming some kind of a twisted pasta. खाया होगा तो एक पास्ता आता है कि नहीं, ऐसे ट्विस्टेड पास्ता, वो ट्विस्टेड पास्ता के जैसा स्ट्रक्चर के जैसा बन जाएगा, which is F actin, okay. And to make a firm actin, that is F actin, which ion do you need? You need magnesium ion. Another thing, when a firm actin will be formed, at that time some binding sites will be created on it, which is called as myosin binding site, okay. So actin जो है, उस actin में कुछ binding site का creation होगा जब actin G से F बनेगा, okay, and this actin will have some binding site called as myosin binding site, ये याद रखना है, okay. Now थ्री एंटिटीज है, जिसमें से पहला एंटिटी का हम लोगों ने डिस्कशन किया. व्हाट आर द टू अदर टू एंटिटीज? वन इज कॉल्ड एज ट्रोपोमायोसिन, वन इज कॉल्ड एज ट्रोपोनिन. नाउ व्हाट इज ट्रोपोमायोसिन? दीज आर टू फिलामेंट्स ऑफ फाइब्रस मॉलिक्यूल दैट रन्स क्लोजली अलोंग द एंटायर लेंथ ऑफ एक्टिन. आज इसको हमको पता है, ये कौन है? ये है जेड लाइन. जेड लाइन से अटैच रहता है कौन? एक्टिन. तो जो ब्लैक में ड्रॉ किया वो एक्टिन, ठीक है. ऐसे बार बार ड्रॉ नहीं कर सकते, तो मैंने एक सिंगल लाइन से एक्टिन को दिखाया. उस एक्टिन के थ्रू आउट द लेंथ एक मसल फिलामेंट है, जो उसके थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द एक्टिन, इट विल ऑल्सो रन अलोंग द एक्टिन, that is called as tropomyosin. And these are two filaments which will again wrap the actin in such a way that it is, क्या बोले इसको, like वही डीएनए का हेलिक्स का जो ट्विस्टिंग होता है, उस तरीके का डीएनए का स्ट्रैंड का जिस तरीके से ट्विस्टिंग होता है, उसी तरीके से ट्रोपोसिन का भी ट्विस्टिंग होगा, जो एक्टिन को ऐसे करके, सपोज एक ऐसा स्ट्रैंड निकला हुआ है, उसको ऐसे करके दो फिलामेंट से जो उसको पूरा रैप अप कर लेगा, ठीक है, ऐसे करके रैप अप करेगा. सो दैट इज योर ट्रोपोमायोसिन. ट्रोपोनिन में क्या बोला गया है? एट रेगुलर इंटरवल्स ऑफ ट्रोपोमायोसिन अ ट्राइमेरिक प्रोटीन इज प्रेजेंट. ट्राइमेरिक प्रोटीन माने प्रोटीन विथ 3 सब यूनिट. what is the structure of troponin? It will look something like this. And what are the 3 subunit? TT, TI and TC. TT is troponin T. TT क्या है? It is the binding site of tropomyosin. Okay, this is that subunit of troponin जिसके मदद से ये entire molecule binds itself with tropomyosin. For example, अगर तुम लोग बोलो कि सर आप उस डायग्राम में समझा सकते हैं क्या, तो समझा सकते हैं. ये होगा क्या? ये होगा T, troponin T. ओके, एंड दिस इज दैट सब यूनिट जो पूरा का पूरा ट्रोपोनिन ट्राइमेरिक प्रोटीन को बाइंड करेगा विथ होम? ट्रोपोमायोसिन. सो दिस इज योर टीटी. यहाँ पे होगा तुम्हारा टीआई एंड यहाँ पे होगा तुम्हारा टीसी. मैंने सिर्फ आई और सी लिखा है, टी नहीं लिखा है, जगह छोटा है इसलिए. ओके, सो ट्रोपोनिन आई क्या करेगा? इनहिबिट्स एक्टिन मायोसिन इंटरेक्शन. ट्रोपोनिन सी एक्टिन मायोसिन इंटरेक्शन को इनहिबिट करेगा ड्यूरिंग
रिलैक्सेशन, जब मसल रिलैक्स स्टेट में रहेगा तब ये आई जो है वो एक्टिन एंड मायोसिन का इंटरेक्शन को रोकेगा। ट्रोपोनिन सी इज अ बाइंडिंग साइट फॉर कैल्शियम, सो सी में कैल्शियम बाइंड होगा, आई जो है वो एक्टिन एंड मायोसिन का जो बाइंडिंग होगा उसको रोकेगा। सो दीज आर योर 3 सब यूनिट, ओके, एंड दिस इज योर ट्रोपोनिन मॉलिक्यूल एंड दीज आर 3 यूनिट्स एंड ट्रोपोनिन अपना टी सब यूनिट के मदद से ट्रोपोमायोसिन से जुड़ा रहता है एंड एट रेगुलर इंटरवल्स हम लोग उसको देखेंगे। अब ये जो ट्रोपोनिन का ये जो 3 सब यूनिट है, ये 3 सब यूनिट का सिग्निफिकेंस अगर समझना है तो उसके लिए अभी मैं एक पिक्चर ड्रॉ करके तुम लोग को समझाने का कोशिश करूंगा, ठीक है। मेक नोट्स, ओके, पोस्ट करके नोट बना लेना। अभी मैं थोड़ा सा मिटा रहा हूं उसको समझाने के लिए, बिकॉज ये अगर समझ में आ गया, नेक्स्ट वी आर डायरेक्टली गोइंग टू द मैकेनिज्म ऑफ मसल कंट्रैक्शन। सो बेसिकली अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा है, बेसिकली अभी जितना पढ़ा है उसमें ये पढ़ा है कि ये अगर हमारा सर्कोमियर का जेड लाइन है, तो जेड लाइन में पहले बोला गया है कि जो एक्टिन है वो एक्टिन पहले क्या रहेगा, लूज रहेगा, ऐसा। देन जब कंट्रैक्शन करना होगा मैग्नीशियम आयन इस लूज को एक फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। सो हम लोग यहाँ पे एक्टिन को एक ऐसे सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जब ये फॉर्म एक्टिन बनेगा, एफ एक्टिन जब बनेगा तो इसमें क्या क्रिएट होगा, इसमें कुछ मायोसिन बाइंडिंग साइट्स का क्रिएशन होगा, ओके। अब हमको पता है जो ट्रोपोमायोसिन है, ट्रोपोमायोसिन सेकंड वाला, ओके, वो कैसे चलता है, वो ऐसे चलता है। यहाँ पे एक लाइन से मैं ट्रोपोमायोसिन को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, जनरली 2 स्ट्रैंड्स होता है। यहाँ पे इसको समझाने के लिए मैं 1 से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ओके। ठीक है, मान लेते हैं ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर है क्या, ये स्ट्रक्चर है ट्रोपोमायोसिन का कोई एक फिलामेंट, सिंगल फिलामेंट, ओके। एंड ये जो ब्लैक में मैंने ड्रॉ किया है, ये ब्लैक वाला है कौन, ये ब्लैक वाला है एफ एक्टिन। तो अगर ये एफ एक्टिन हमको पता है, ये जो है वो है क्या, मायोसिन बाइंडिंग साइट, ओके। ये जो यहाँ पे मैंने गोल गोल बनाया है, ठीक है, थोड़ा सा क्यूबोइडल शेप का जो मैंने बनाया है, दीज आर योर मायोसिन बाइंडिंग साइट जो एक्टिन में क्रिएट होता है। जब एक्टिन क्या एक्टिन बनता है, एफ एक्टिन बनता है, क्लियर, ओके। अब हमको पता है ट्रोपोनिन प्रेजेंट है। अभी ट्रोपोनिन कैसे प्रेजेंट होगा, देखो, ये सब यूनिट होगा ट्रोपोनिन टी, ये सब यूनिट होगा ट्रोपोनिन आई। तो ट्रोपोनिन आई बेसिकली क्या कर रहा है, जो मायोसिन बाइंडिंग साइट है, ये जो हमारा मायोसिन बाइंडिंग साइट है, उसको क्या कर रहा है, इनहिबिट कर रहा है। एंड इधर है ट्रोपोनिन सी। अब किसके साथ ये इनहिबिट कर रहा है, आई। नीचे कौन प्रेजेंट है, नीचे प्रेजेंट है मायोसिन। एंड हम लोगों ने मायोसिन का स्ट्रक्चर्स देखा है। मायोसिन का स्ट्रक्चर कैसा होता है देखने में, ऐसा, मेरोमायोसिन ऐसा, मेरोमायोसिन ऐसा, हम लोगों ने देखा है पहले, ठीक है। मायोसिन का हम लोग एक साइड अगर ड्रॉ करेंगे तो मायोसिन ऐसा ऐसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा। अब मायोसिन का ये वाला क्या था, एक्टिन बाइंडिंग साइट। सो दिस इज योर एक्टिन बाइंडिंग साइट, दिस इज योर एक्टिन BS, एक्टिन बाइंडिंग साइट, एंड दिस वन इज योर मायोसिन बाइंडिंग साइट। सो एक्टिन एंड मायोसिन बाइंडिंग साइट के बीच में कौन खड़ा है, ट्रोपोनिन आई खड़ा है। कब खड़ा है, दिस इज योर पिक्चर व्हेन द मसल इज इन व्हाट स्टेट, द मसल इज इन रिलैक्स स्टेट। सो व्हेन द मसल इज इन रिलैक्स स्टेट, एक्टिन and myosin will not get to interact with one another because of troponin I, because troponin I बीच में ऐसे खड़ा रहेगा, तो मायोसिन और एक्टिन को वो मिलने नहीं देगा। This is the significance of I। ट्रोपोनिन टी इस पूरे ट्रोपोनिन मॉलिक्यूल को ट्रोपोमायोसिन के साथ जोड़ता है, एंड ट्रोपोनिन सी में कैल्शियम बाइंड होता है। वो कब बाइंड होगा, कैसे बाइंड होगा, वो हम लोग मैकेनिज्म ऑफ मसल कंट्रैक्शन में जानेंगे। सो आई होप ये वाला जो डिस्कशन अभी मैंने किया है, ये वाला क्लियर हुआ है कि कैसे ट्रोपोनिन आई इट इज प्रिवेंटिंग द बाइंडिंग साइट ऑफ माने एक्टिन, एक्टिन में जो मायोसिन बाइंडिंग साइट है एंड मायोसिन में जो एक्टिन बाइंडिंग साइट है, दोनों को कैसे इनहिबिट करता है, ऐसे इनहिबिट करता है। अब हम लोग मैकेनिज्म ऑफ मसल कंट्रैक्शन में चले जाएंगे, उसका डिस्कशन करेंगे, ठीक है। आई होप स्ट्रक्चर्स क्लियर हुआ है। सो यहाँ पे देखो हम लोग मैकेनिज्म ऑफ मसल कंट्रैक्शन डिस्कस कर रहे हैं। तो मैकेनिज्म ऑफ मसल कंट्रैक्शन जो है, इट इज आल्सो कॉल्ड एज व्हाट, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, ओके, अल्टरनेट नेम ऑफ मैकेनिज्म ऑफ मसल कंट्रैक्शन। We know that muscle contraction will occur only when a nerve impulse hits a particular muscle। जब भी कोई नर्व इंपल्स आके एक मसल को हिट करेगा, तभी एक मसल जो है उस नर्व इंपल्स के हिटिंग के प्रति रेस्पॉन्ड करेगा, एंड दैट रेस्पॉन्ड विल बी अ मसल कंट्रैक्शन, ओके। Here we can see that this sarcomere, we know this is a Z line, this is a Z line, and in between two Z line, this is called the structural and functional unit of skeletal muscle called as sarcomere। अच्छा, मसल के अंदर, मसल फाइबर के अंदर
ठीक है। देयर विल बी सम क्या बोलते हैं इसको, सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया होगा, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, और भी होगा, लेकिन हम लोग को यहाँ पे जिन सेल ऑर्गेनेल्स से काम है हम लोगों ने सिर्फ उन्हीं को लिखा है, माइटोकॉन्ड्रिया, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। Now we know that mitochondria is called as what? Powerhouse of the cell. So mitochondria is known to provide ATP, and sarcoplasmic reticulum, it is called as the calcium storehouse of a cell, muscle cell. Okay, calcium storehouse of a muscle cell. That means sarcoplasm के अंदर बहुत सारा calcium ions present है, ठीक है। So sarcoplasmic reticulum is the calcium storehouse, mitochondria is the powerhouse. ये दोनों चीज याद रखना है। Okay, now ये जो मसल का फाइबर का मैंने यहाँ पे एक ड्राइंग किया है, सार्कोमेयर का ड्राइंग किया है, उसमें हम लोग देख रहे हैं आई जो है वो एक्टिन और मायोसिन के बीच में खड़ा है। मायोसिन का एक्टिन बाइंडिंग साइट, एक्टिन का मायोसिन बाइंडिंग साइट के बीच में खड़ा है आई। सो दैट मींस ये मसल कौन से स्टेट में है, रिलैक्स स्टेट में है, जो प्रीवियसली ड्रॉ किया था। ओके, सो दिस इज योर मसल यूनिट sarcomere, and इस मसल यूनिट में this is your one cell organelle, this is your another cell organelle that you need to remember, which is present suspended in sarcoplasm. sarcolemma के अंदर जो साइटोप्लाज्म है उसको sarcoplasm बुलाते हैं, ये टिश्यू चैप्टर में भी हम लोगों ने पढ़ा है। ओके, एंड अंदर कंडीशन रिलैक्स स्टेट में है तो ऐसा है, क्लियर है। अच्छा, अब इसको मैंने एफ एक्टिन क्यों लिखा है, अगर रिलैक्स्ड होगा तो मैं इसको जी एक्टिन लिखूंगा, लेकिन अब हम लोग कंट्रैक्शन डिस्कस करने वाले हैं। तो अभी कंट्रैक्शन में क्या होगा, देखो, एज आई टोल्ड यू, नर्व इंपल्स कॉजेस मसल कंट्रैक्शन। सो नर्व इंपल्स विल हैव टू कम थ्रू दिस, नर्व इंपल्स विल हैव टू कम थ्रू दिस। व्हाट इज दिस, ये जो स्ट्रक्चर है इसको मैंने टेलोडेंड्रिया बोला है, इसको साइनेप्टिक नोब बोला है। मतलब ये हम लोग एक नर्व का किसी एक लास्ट जो न्यूरॉन है, नर्व इज मेड अप ऑफ मेनी न्यूरॉन्स, सो एक नर्व का जो लास्ट न्यूरॉन होगा, उस लास्ट न्यूरॉन का ये साइनेप्टिक नोब है, टेलोडेंड्रिया है, ठीक है। न्यूरॉन का स्ट्रक्चर हम लोगों ने अच्छे से पढ़ा है क्लियरली, तो उसमें टेलोडेंड्रिया, साइनेप्टिक नोब ये सब पढ़ा है। ओके, so this structure that I have drawn, this is the terminal end, this is a terminal end of a क्या neuron. So this is a terminal end of a neuron that I have drawn over here. Okay, terminal end of a neuron में हम लोग को पता है axon terminal, which is also called as telodendria. Axon terminal ends in a knob-like structure called as synaptic knob. Synaptic knob के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, इस तरीके का कुछ वेसिकल्स प्रेजेंट होता है, जिसको हम लोग क्या बुलाते हैं, साइनेप्टिक वेसिकल्स, जिसके अंदर प्रेजेंट है बहुत सारा केमिकल्स, which is called as न्यूरोट्रांसमीटर। इस तरीके से साइनेप्टिक वेसिकल के अंदर काफी सारा केमिकल्स प्रेजेंट है, और इन केमिकल्स को हम लोग न्यूरोट्रांसमीटर बोलते हैं। ये जो साइनेप्टिक नोब है, जिसके थ्रू नर्व इंपल्स जो है वो सिग्नल करता है मसल को कंट्रैक्ट करने के लिए, इसमें जनरली जो न्यूरो हार्मोन या अंदर में जो न्यूरोट्रांसमीटर प्रेजेंट होता है, दीज आर व्हाट, दीज आर एसिटाइल कोलाइन। ओके, सो व्हिच स्टोर्स न्यूरो हार्मोन्स सच एज एसिटाइल कोलाइन। तो इनके अंदर में जो न्यूरो हार्मोन्स है उसको हम लोग एसिटाइल कोलाइन बोलते हैं। तो ये जो ब्लू ब्लू में मैंने डॉट दिया है, दीज आर नन अदर देन योर एसिटाइल कोलाइन। क्लियर है। ओके, नाउ अभी क्या होगा, जैसे ही नर्व इंपल्स आता है, वो नर्व इंपल्स, ये टर्मिनल एंड ऑफ न्यूरॉन, ये हमारा क्या है, मसल का सार्कोलेमा। सो न्यूरॉन और सार्कोलेमा जो है, या न्यूरॉन और मसल जो है, उनके बीच में जो जंक्शन है, उस जंक्शन को हम लोग क्या बुलाते हैं, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। इट इज अ केमिकल साइनेप्स, केमिकल जंक्शन filled with a fluid called as synaptic fluid। इसके अंदर में यहाँ पे कुछ फ्लूइड प्रेजेंट है, जिसको हम लोग क्या फ्लूइड बुलाते हैं, साइनेप्टिक फ्लूइड बुलाते हैं। ठीक है, तो ये है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, क्योंकि न्यूरॉन का टर्मिनल एंड एंड मसल के बीच में ये जगह प्रेजेंट है, इसलिए न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बोला गया। ठीक है, अब क्या होगा, मसल कौन से स्टेट में है हमको पता है, टर्मिनल एंड ऑफ न्यूरॉन कौन से स्टेट में हम लोग को पता है। अब जब नर्व इंपल्स आएगा, इनकमिंग ऑफ दिस नर्व इंपल्स इज गोइंग टू मेक दी साइनेप्टिक वेसिकल्स टू बर्स्ट। साइनेप्टिक वेसिकल जो है वो बर्स्ट हो जाएगा, जिसके वजह से साइनेप्टिक वेसिकल्स के अंदर से ये जो एसिटाइल कोलाइन है वो रिलीज होगा किधर, इधर, कहां पे, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में, जहां पे क्या प्रेजेंट है, साइनेप्टिक फ्लूइड। उस साइनेप्टिक फ्लूइड में ये जो हमारा न्यूरो हार्मोन्स है, वो न्यूरो हार्मोन्स विल गेट रिलीज। सो व्हेन द नर्व इंपल्स कम्स टू द साइनेप्टिक नोब रीजन ऑफ अ न्यूरॉन, जब नर्व इंपल्स साइनेप्टिक नोब में आता है, तो साइनेप्टिक नोब के अंदर का जो साइनेप्टिक वेसिकल है वो अपने अंदर से अपना जो न्यूरो हार्मोन या न्यूरोट्रांसमीटर है उसको रिलीज कर देता है। यहाँ पे इन साइनेप्टिक वेसिकल के अंदर न्यूरो हार्मोन या न्यूरोट्रांसमीटर कौन है, एसिटाइल कोलाइन है, तो उसको रिलीज कर दिया जाएगा। कहाँ रिलीज कर दिया जाएगा, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में रिलीज कर दिया जाएगा। ठीक है, इस रिलीज के वजह से क्या होगा,
इस रिलीज के वजह से यहाँ पे इस तरीके से एसिटाइल कोलाइन जो है वो यहाँ पे आ जाएगा, एंड दिस एसिटाइल कोलाइन विल गो स्लोली डाउनवर्ड एंड दिस एसिटाइल कोलाइन विल स्टार्ट बाइंडिंग ऑन द सार्कोलेमा। ये जो सार्कोलेमा है इस सार्कोलेमा में बाइंड करना शुरू करेगा। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टूड। ठीक है, साइनेप्टिक वेसिकल के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो लॉक था। जैसे ही नर्व इंपल्स आया, साइनेप्टिक वेसिकल was made bound to release the neurohormones. Synaptic vesicle released the neurohormones which came into the synaptic fluid. Okay, and then this neurotransmitter slowly comes down and it binds with the sarcolemma. This binding of the neurotransmitter on the sarcolemma is going to generate a nerve impulse on the sarcolemma. कैसे नर्व इंपल्स सार्कोलेमा में जनरेट होगा, ये इसका नेक्स्ट चैप्टर जो है जिसको हम लोग बुलाते हैं न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, उस चैप्टर में समझ में आएगा। लेकिन इतना याद रखो कि जैसे ही ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है, ये न्यूरोट्रांसमीटर जैसे ही नीचे की तरफ आके न्यूरोट्रांसमीटर्स, न्यूरोहार्मोन्स, एसिटाइल कोलाइन जैसे ही कहां बाइंड करेगा, सार्कोलेमा में बाइंड करेगा, दैट बाइंडिंग इज गोइंग टू जनरेट ए नर्व इंपल्स ऑन द सार्कोलेमा इटसेल्फ। तो ये नर्व इंपल्स इधर नहीं आया है, इस नर्व इंपल्स के वजह से यहां से कुछ केमिकल रिलीज हुआ है, वो केमिकल नीचे आके जब सार्कोलेमा के साथ बाइंड किया है तब एक और नर्व इंपल्स विद इन सार्कोलेमा, सार्कोलेमा में ही प्रोड्यूस हुआ है। ये नर्व इंपल्स जो एसिटाइल कोलाइन बाइंडिंग के वजह से सार्कोलेमा में प्रोड्यूस हुआ है, ये नर्व इंपल्स विल मूव इंट्रासेलुलरली एंड इट इज गोइंग टू हिट माइटोकॉन्ड्रिया, इट इज गोइंग टू हिट सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है कि नहीं? अभी जो नर्व इंपल्स सार्कोलेमा में प्रोड्यूस हुआ है ड्यू टू द बाइंडिंग ऑफ एसिटाइल कोलाइन इनटू सार्कोलेमा, ठीक है, तो विद इन सार्कोलेमा जो नर्व इंपल्स बना है वो नर्व इंपल्स अभी इंट्रासेलुलरली अंदर की तरफ मूव करेगा और जाके ठोकेगा, हिट करेगा किसको? माइटोकॉन्ड्रिया को एंड सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। अब ये जो माइटोकॉन्ड्रिया को जो ये बाइंड करेगा, इस हिट करेगा, इस हिटिंग के वजह से माइटोकॉन्ड्रिया क्या करेगा? माइटोकॉन्ड्रिया जो काम करता है वो करेगा, क्या है काम? रिलीजेस एटीपी एंड सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम को क्या बुलाया था? कैल्शियम स्टोर हाउस। सो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम विल डू व्हाट? रिलीजेस कैल्शियम आयन। समझ में आया कि नहीं आया? तो माइटोकॉन्ड्रिया एंड सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज नॉट जनरली गोइंग टू रिलीज एटीपी एंड कैल्शियम आयन, दे विल रिलीज ओनली व्हेन दे गेट हिट बाय whom? A nerve impulse which is created or formed within the sarcolemma due to the binding of acetylcholine. अब ये जो एटीपी एंड कैल्शियम आयन रिलीज हुआ है, ये लोग क्या करेगा? एटीपी आके कहां बाइंड करेगा? इसलिए मैंने बोला था स्ट्रक्चर याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कैल्शियम आयन से शुरू करते हैं। ये जो कैल्शियम आयन है, ये कैल्शियम आयन क्या होगा? ये निकल के आएगा और ये कैल्शियम आयन ऐसे आएगा और आके ये कैल्शियम आयन किधर बाइंड करेगा? ट्रोपोनिन सी के साथ। ओके, ट्रोपोनिन सी को हम लोगों ने बुलाया था कैल्शियम बाइंडिंग साइट और कैल्शियम बाइंडिंग यूनिट। जैसे ही कैल्शियम आयन आके सी के साथ बाइंड करेगा, ये जो ट्रोपोनिन मॉलिक्यूल है, ये एक क्या बोलते हैं इसको? अरे पार्क में जो होता है, इस तरफ एक बैठता है, इस तरफ एक बैठता है और ऐसे ऐसे करते हैं, चाहे अभी दिमाग में नाम याद नहीं आ रहा है। समझ में आया कि नहीं? वो ऐसे करके पार्क में जो होता है कि नहीं, इधर कोई बैठता है, इधर कोई बैठता है, देन ऐसे 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 होता रहता है। ठीक है, उस स्ट्रक्चर के जैसा है। तो जैसे ही कैल्शियम आयन आके सी के साथ बाइंड करेगा, ट्रोपोनिन का जो मोलिकुलर वेट है वो सी के तरफ ज्यादा शिफ्ट होगा, सी के तरफ भारी हो जाएगा। तो जैसे ही सी के तरफ भारी होगा, ये मॉलिक्यूल क्या होगा? ये मॉलिक्यूल रोटेट करेगा, ऐसे करके रोटेट कर जाएगा और रोटेट करने के वजह से ये जो मॉलिक्यूल रोटेशन होगा, उसके वजह से हम लोग क्या देखेंगे? जो सी है वो सी यहां आ जाएगा, ओके, एंड आई जो है वो आई यहां आ जाएगा। तो ये मॉलिक्यूलर रोटेशन होगा। ठीक है कि ट्रोपोनिन सब यूनिट विल रोटेट। ठीक है, बिकॉज सी में आके जैसे ही कैल्शियम आयन बाइंड करेगा, दैट कैल्शियम आयन इज गोइंग टू मेक द ट्रोपोनिन टू मूव अवे फ्रॉम दिस। ये क्या था? मायोसिन बाइंडिंग साइट। ठीक है, और अभी तो ये एफ बन चुका होगा क्योंकि मसल कंट्रैक्शन होने वाला है। ठीक है, तो ये एफ बन चुका है जी से सॉलिड, और उसमें क्रिएट हो चुका है ये, जिसको हम लोग क्या बुलाएंगे? मायोसिन बाइंडिंग साइट ऑन एक्टिन। ये क्या है? एक्टिन बाइंडिंग साइट ऑन मायोसिन। आई हट गया, आई हट गया। अभी आई हटने के वजह से क्या हो जाएगा? ये जो जगह है यहां पे कौन आके बाइंड करेगा? ये जो एटीपी भी रिलीज किया है माइटोकॉन्ड्रिया ने, ये एटीपी आएगा और ये एटीपी इधर बाइंड करेगा। जैसे एटीपी बाइंड करेगा, मायोसिन को पावर मिलेगा एंड विद द हेल्प ऑफ दैट पावर दे विल क्रिएट अ बॉन्ड बिटवीन दिस एंड दिस, दैट इज मायोसिन बाइंडिंग साइट ऑन एक्टिन एंड एक्टिन बाइंडिंग साइट ऑन मायोसिन। दोनों के बीच में एक बॉन्ड क्रिएट होगा। ये जो बॉन्ड क्रिएट हुआ है, इस बॉन्ड को हम लोग क्या बुलाते हैं? दिस बॉन्ड इज कॉल्ड एज क्रॉस ब्रिज। और जैसे ही ये बॉन्ड बनेगा, क्रॉस ब्रिज, अब क्या होगा? ये जो एक्टिन है, दिस एक्टिन विल स्टार्ट स्लाइडिंग ओवर द मायोसिन, मायोसिन के ऊपर स्लाइड करेगा, जिसके वजह से ये दोनों जेड लाइन ऐसे करके पास में आएगा। बाकी तो समझाया था, दोनों जेड लाइन पास करके आएगा, तो बीच में एक लाइन है एम लाइन, वहां आके रुक जाएगा।
दोनों एक्टिन एक दूसरे को टच कर जाएगा, दैट इज द मैक्सिमम पॉइंट ऑफ कंट्रैक्शन एम लाइन, ठीक है। तो वो प्रीवियस वीडियो में समझाया हुआ है। तो ये दोनों पास मूव करेगा और एम लाइन पे आने पे कंट्रैक्शन वो होगा मैक्सिमम कंट्रैक्शन। सो हाउ कंट्रैक्शन हैपेंस? कंट्रैक्शन हैपेंस व्हेन द क्रॉस ब्रिज इज formed. And how cross bridge is formed? When calcium ion removes the troponin subunit and ATP provides that energy to form the cross bridge. Once the cross bridge is formed, the bond is formed between the actin and myosin. Now actin can slide over the myosin. And that is why this mechanism is called as sliding filament theory, and this is how muscle contraction occurs or happens. ठीक है, तो आई होप ये समझ में आया होगा। अब कंट्रैक्शन कैसे होता है समझ में आ गया। रिलैक्सेशन कैसे होगा? नर्व इंपल्स आने से एसिटाइल कोलाइन रिलीज होता है। पकड़ लो, नर्व इंपल्स नहीं आता है, यहां से नर्व इंपल्स नहीं आता है तो एसिटाइल कोलाइन रिलीज नहीं होगा। एसिटाइल कोलाइन रिलीज नहीं होगा तो नो एसिटाइल कोलाइन विल बाइंड विद द सर्कोलेमा। नो एसिटाइल कोलाइन बाइंड्स विद द सर्कोलेमा, नो नर्व इंपल्स इज फॉर्म्ड। नो नर्व इंपल्स इज फॉर्म्ड, नो रिलीज ऑफ एटीपी, नो रिलीज ऑफ कैल्शियम आयन। सो कैल्शियम आयन अगर रिलीज नहीं होगा, कैल्शियम आयन यहां बाइंड नहीं होगा, ये स्ट्रक्चर वापस घूम जाएगा, आई बीच में आ जाएगा। एटीपी नहीं है तो क्रॉस ब्रिज नहीं बनेगा, वापस ये स्ट्रक्चर बीच आई जो है वो बीच में आ जाएगा, क्रॉस ब्रिज टूट जाएगा, मसल रिलैक्स स्टेट में चला जाएगा। सो दिस इज योर मैकेनिज्म ऑफ मसल कंट्रैक्शन। सो आई होप यू अंडरस्टूड। प्लीज मेक प्रॉपर डायग्राम्स एंड लिसन टू द वीडियो एंड मेक नोट्स अकॉर्डिंगली। ओके, सो यहाँ पे अभी हम लोग मसल का लास्ट चीज डिस्कस कर रहे हैं, दैट मसल फैटिग वाज डिस्कवर्ड बाय कार्ल फर्डिनेंड कोरी एंड गैटी कोरी, ठीक है। एंड व्हाट दे सेड, द रिपीटेड कंट्रैक्शन ऑफ स्केलेटल मसल, इफ यू मेक द स्केलेटल मसल टू मतलब रिपीटेड कंट्रैक्शन अगर कराओगे वो भी हाउ एनारोबिकली, ओके। सो वी नो दैट कंट्रैक्शन स्पीड ऑफ स्केलेटल मसल इज वेरी फास्ट, इज नॉट इट? व्हाट इज द स्पीड अगर हम लोग स्केलेटल मसल का देखें तो 0.1 सेकेंड इज द स्पीड विथ ऑफ द कंट्रैक्शन ऑफ द स्केलेटल मसल। सो द स्पीड इज वेरी हाई, लेकिन ऑक्सीजन मिलेगा एट एन इंटरवल ऑफ 0.8 सेकेंड, क्योंकि हमको पता है हमारा जो हार्ट बीट है वो हार्ट बीट 0.8 सेकेंड में होता है, ठीक है। तो इन एवरी 0.8 सेकेंड जब हमारा हार्ट बीट करेगा तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड विल गेट डिलीवर्ड टू द मसल, बट स्केलेटल मसल का कंट्रैक्शन स्पीड इज 0.1 सेकेंड। माने जब तक ऑक्सीजन मिलेगा एक मसल को, वो 8 बार कंट्रैक्शन कर सकता है। अगर 0.1 सेकेंड उसका स्पीड ऑफ कंट्रैक्शन है, एवरी 0.8 सेकेंड में उसको क्या मिलेगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिलेगा, बिकॉज दैट इज व्हेन द हार्ट पंप्स आउट द ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड मेक्स इट टू रीच द मसल, ठीक है कि नहीं? तो मसल को अगर हम लोग रिपीटेड कंट्रैक्शन कराएंगे तो वो इनिशियली एरोबिकली रेस्पायर करेगा, बट देन एनारोबिकली करने पे मजबूर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका स्पीड बहुत फास्ट है और कंट्रैक्शन का, एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड उसको बहुत ही गैप के बाद मिलेगा। सपोज 0.8 सेकेंड में ऑक्सीजन डिलीवर होगा तो टिल 0.8 सेकेंड वो कितना बार कंट्रैक्शन कर सकता है? 8 टाइम्स, ठीक है ना। तो अगर 0.1 सेकेंड जब है तब उसको ऑक्सीजन मिला, मान लेते हैं। नेक्स्ट उसको ऑक्सीजन मिलेगा 0.9 पे, क्योंकि हमको पता है 0.8 सेकेंड के बाद हार्ट पंप करेगा तब ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिलेगा। तो 0.1 सेकेंड में अगर उसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिला उस ऑक्सीजन से, ठीक है कि नहीं, 0.1 सेकेंड से 0.9 सेकेंड इज द गैप ऑफ रिसीविंग ऑक्सीजन बाय अ मसल। But in this gap of 0.8 second, how many times it can contract? It can do 8 contraction. So 0.1 second में जब उसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिला था तब उसने कंट्रैक्शन करना चालू किया। पहला 4-5 कंट्रैक्शन उसने ऑक्सीजन के मदद से किया, लेकिन लास्ट का जो 3 कंट्रैक्शन है उसके लिए ऑक्सीजन बचा ही नहीं। तो लास्ट का 3 कंट्रैक्शन वो कैसे करेगा? एनारोबिकली करेगा। और जब मसल एनारोबिकली रेस्पायर करता है या एनारोबिकली ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करता है तब एक बाई प्रोडक्ट फॉर्म होता है which is lactic acid, and this is the lactic acid which causes what? Muscle fatigue. That is, the muscle will feel tired and there will be some kind of pain ka feeling in the muscle. So that is what happen when we play for a very long time or we walk for a very long time. Our muscle starts to get tired, our muscle starts to pain. That is muscle fatigue. And why it occurs? Because हम लोग बहुत लंबा टाइम तक एक strenuous condition में है. We are working out for a very long time and our skeletal muscle is contracting repetitively. So प्रॉब्लम क्या होगा? दैट व्हेनेवर इट विल रिसीव ऑक्सीजन, फर्स्ट 4-5 कंट्रैक्शन इट कैन डू विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, बट रिमेनिंग 3-4 कंट्रैक्शन इट विल हैव टू डू इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। एंड व्हेनेवर अ मसल विल हैव टू रेस्पायर एनारोबिकली, मींस जब भी मसल को ग्लूकोज का ब्रेकडाउन इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन करना पड़ेगा तब लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होगा मसल के अंदर, एंड फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड इनसाइड द मसल कॉजेस व्हाट? मसल फैटिग।
ओके, सो आई होप ये समझ में आया है तुम लोगों को कि स्पीड का यहाँ पे क्या खेल है, ठीक है कि नहीं। ये मसल बहुत स्पीड से कंट्रैक्ट करता है, तो जो ऑक्सीजन मिलता है उससे वो 3-4 बार ही कंट्रैक्शन कर पाएगा, बाकी एनारोबिकली करने पे मजबूर हो जाएगा अगर इस मसल को हम लोग कंटिन्यूअसली काम करवा रहे हैं तो। There are two types of muscle fiber. One is red muscle fiber, one is white muscle fiber present in our body. Skeletal muscle. One is red and another is white. Okay, so what is the significance of this muscle? Why the color of this muscle is red? Because it has a metalloprotein present called as myoglobin. Okay, so myoglobin is just like hemoglobin. Hemoglobin में भी क्या है? Iron present and globin present है. इसमें भी आयरन एंड ग्लोबिन प्रेजेंट है। हेमोग्लोबिन क्या करता है? बाइंड्स विद ऑक्सीजन, कैरीज ऑक्सीजन। ये भी ऑक्सीजन को बाइंड करता है, स्टोर करता है कहाँ? मसल के अंदर। इसलिए क्या नाम दिया है? मायो। मायो माने मसल। सो मसल का मेटालोप्रोटीन मायोग्लोबिन व्हिच हैज आयरन प्रेजेंट इन इट एंड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दैट आयरन द कलरेशन इज रेड। सो मायोग्लोबिन इज प्रेजेंट व्हिच बाइंड्स एंड स्टोर्स व्हाट? ऑक्सीजन। व्हाइट में मायोग्लोबिन इज एब्सेंट। ओके, सो जैसे कि ब्लड का एक प्रोटीन है मेटालोप्रोटीन कॉल्ड एज हेमोग्लोबिन, उसी तरीके का मसल का भी एक मेटालोप्रोटीन है कॉल्ड एज मायोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन इज आल्सो मेड अप ऑफ आयरन, मायोग्लोबिन इज आल्सो मेड अप ऑफ आयरन। आयरन gave the color red, absence of myoglobin, absence of iron gave the coloration white. As well as red muscle fiber में mitochondria is more, white में less. More blood capillaries, less blood capillaries. Less blood capillaries, less incoming of oxygen, less number of mitochondria, less production of ATP, can contract for longer period as it carries out aerobic oxidation without lactic acid accumulation. Obviously मायोग्लोबिन है इस मसल के अंदर जो ऑक्सीजन का स्टोरेज कर रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया है जो रेडीमेड एटीपी देगा, मोर ब्लड कैपिलरीज मींस मोर इनकमिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड। सो ऑक्सीजन मिल रहा है, ऑक्सीजन स्टोर हो रहा है, तो इस मसल को एनारोबिक रेस्पिरेशन करने का कभी जरूरत ही नहीं पड़ेगा। तो ये मसल हमेशा एरोबिक रेस्पायर करेगा। सो एरोबिक रेस्पायर माने नो लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन, नो लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन माने नो मसल फैटिग। सो रेड मसल फाइबर एक ऐसा मसल फाइबर है जो क्या होगा? बहुत देर बाद फैटिग होगा। क्यों? क्योंकि उसको एरोबिकली रेस्पायर करने का जरूरत ही नहीं है। मायोग्लोबिन है जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है, वो ऑक्सीजन डिलीवर करेगा। ब्लड कैपिलरी है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आएगा। माइटोकॉन्ड्रिया है, रेडीमेड एटीपी मिलेगा, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, इसको कभी भी एनारोबिक करने का जरूरत नहीं है बिकॉज ऑफ दिस थ्री थिंग। हेंस because of these three factor this muscle has this ability, it can do aerobic oxidation, okay, and there will be no lactic acid accumulation, no fatigue. Example, flight muscle of kites. If you have seen kites, it can fly over a longer distances. Kites are migratory birds, they fly for a very longer distance without stopping. So उनका जो flight muscle है, वो flight muscle में क्या muscle होगा? Red. इसलिए तो इतना लंबा टाइम तक वो लोग कंट्रैक्शन कर रहा है, काम कर रहा है, लेकिन फिर भी फैटिग फील नहीं हो रहा है। क्यों? बिकॉज रेड मसल फाइबर है वो सब। हमारा एक्सटेंसर मसल ऑफ ह्यूमन बैक, हमारा बैक का जो मसल है, हम लोग कितना टाइम तक खड़ा रह सकते हैं, बैठे रह सकते हैं, ठीक है कि नहीं? और वो खड़ा बैठे वो किस मसल के मदद से रहते हैं? बैक का मसल के मदद से। एंड वी डू नॉट फील फैटिग। सपोज यू आर सिटिंग इन द क्लास, योर बैक इज अपराइट स्ट्रेट, you are standing, your back is upright straight. Who is keeping your back upright and straight? It is your back का muscle which is called as extensor muscle. So हमारा बैक का मसल क्या है? रेड मसल है। वो हमको क्या करता है? फैटिग फील करने नहीं देता है। हाँ, बहुत लंबा टाइम तक खड़ा रहेंगे तब जाके पेन करेगा, अलग बात है। बट सपोज अभी मैं ये लेक्चर बना रहा हूँ, ये लेक्चर बनेगा ये 30 मिनट्स या समथिंग का, लेकिन इसको बनाने में मुझे 1.5-2 घंटा लग गया। तो 1.5-2 घंटा आई एम स्टैंडिंग, आई एम राइटिंग, ओके, तो मेरा जो बैक का मसल है इट्स नॉट पेनिंग। लेकिन आज अगर मैं 1.5 घंटा क्या करूं? बाइसेप्स का एक्सरसाइज करूं, तो मेरा हाथ पेन करना शुरू कर जाएगा। क्यों? बिकॉज मेरा बाइसेप का जो मसल है वो रेड मसल नहीं है, वो व्हाइट मसल है, ठीक है? तो व्हाइट मसल क्या होगा? गेट्स फैटिग इजीली। क्यों? क्योंकि उसमें लेस ब्लड कैपिलरी है, ऑक्सीजन कम आ रहा है, मायोग्लोबिन भी नहीं है, तो इसको क्या करना पड़ेगा? एनारोबिकली रेस्पायर करना पड़ेगा। बिकॉज एरोबिक करने का इसके पास चांसेस कम है ड्यू टू दिस थ्री फैक्टर। तो एरोबिक नहीं करेगा, एनारोबिक करेगा तो लैक्टिक एसिड बनेगा, लैक्टिक एसिड बनेगा तो फैटिग होगा। तो फ्लाइट मसल ऑफ स्पैरो, स्पैरो को देखना, तो थोड़ा डिस्टेंस जाके बैठता है, रेस्ट लेता है, फिर उठता है, फिर बैठता है, लाइक दैट, क्योंकि वो लंबा फ्लाइट नहीं ले सकता है। बिकॉज द फ्लाइट मसल्स ऑफ स्पैरो इज व्हाइट। बाइसेप्स ऑफ ह्यूमन, यू कैन नॉट do 1.5 hour workout only on your bicep. That is not possible because your bicep is made up of what muscle fiber? It will get fatigue. But you can stand for 1.5 hour, 2 hours. Okay, why? Because your back muscle is made up of red muscle fiber. So यहाँ पे मसल्स का डिस्कशन खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में we will be talking about the skeletal system, human skeletal system. Make notes. Thank you.